Good morning, students. I am Ramdev from TSN the school. Now today we have start class 10 chapter number 2 economics sectors of the Indian economy. Sectors of economic activity. Let us look these pictures. You look some pictures in your book and also your screen. So there are the different kinds of the activities they people have engaged the different types of activities. So you will be find in the picture the peoples are engaged in the various economic activity. Some of these are activity pursuing goods and some of these are the procuring the services. These activities are happening around every minutes even as we have speak. देखो अभी जब हम बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, जब आप राइटिंग वर्क करते हैं, सो यू डूइंग सम एक्टिविटीज़. All the time we have some activities, but all the types of the activity we have doing is not including to economic activity. ठीक है, आप उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटी दोज एक्टिविटीज़ जिनके रिप्लेस में बेटा मनी मिलता है. ठीक है, व्हेन यू डूइंग द वर्क और आपको बेटा उसका पेमेंट चाहे वो मंथली हो या डेली बेसिस हो, जब आप अर्न करते हैं. ठीक है, सो जॉब्स, ठीक है, अदर फार्मर्स इन देयर फील्ड्स, वर्कर्स, सो दीज ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जहाँ पे रिप्लेस में बेटा मनी मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, वी हैव इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी. In India, now we talking about to India, so all the activities in divided the three sectors. First, primary sectors. Primary sector basically related to the agriculture fields. Secondary sectors. Secondary sector is related to industrial sectors. And third, tertiary sectors. Tertiary sectors provide to services. So now you look there, page number 3. There are the many activities that are undertaken by the directly using natural resources. टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन्स. कुछ एक्टिविटीज़ को यहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पे आपको एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट, कॉटन टेक्स प्लेस विद इन द क्रॉप सीजन्स. फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन द नेचुरल फैक्टर्स. ठीक है, देखो रेनफॉल होता है सीजन में, इसको जब ग्रोन किया जाएगा कॉटन्स को, तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी बेटा वहीं हमें कहीं ना कहीं हम डिपेंड रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल rainfall, sunshine and climate. The product of the activity cotton is the natural product. Similarly, in the case of in the activity like dairy basically is depend on animals. ठीक है, डेयरी फार्म अगर आप कहीं पे सेटअप करेंगे तो वो एनिमल पे डिपेंड करेगा. वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूडर्स एक्सेट्रा. ठीक है, द प्रोडक्ट हेयर द मिल्क आल्सो इज द नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली द मिनरल्स एंड ऑर्न्स आर also the natural products. So when we produce the good of exploiting natural resources, it is the activity of the primary sectors activity. Why it's called the primary activity? Because it forms the base of all the other products that we subsequently make, since most of the natural products we get from the agriculture, dairy, fishing, forestry, and this sector also called एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स. ये अंडरलाइन करना बेटा, प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स. नाउ वी टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म. इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये. यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बेटा अपने नेचुरल फॉर्म को चेंज कर लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल वीट, यहाँ पे वीट बेटा फ्लोर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, गेहूँ का अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है, डेट मीन्स मिल्स पे ले गए, उसको पिसाया, तो वो आटे में कन्वर्ट हो रहा है, डेट मीन्स फ्लोर बन रहा है बेटा. थ्रोज वेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएटेड विथ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी. The product is not produced by the nature but also has to be made, and therefore some process of manufacturing is initials. This could be in the factory, at the workshop or at home. For example, using the cotton fiber from the plant we स्पाइन यान एंड द वेव क्लोथ. ठीक है, तो हम क्लोथ बनाएंगे बेटा, यान बनाएंगे उससे. एंड यूजिंग शुगर क्रेन. नाउ गन्ने की बात बताया बेटा, हैज़ ए रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल की तरह बेटा उसको यूज़ कर रहा. फार्मर ने अपनी फील्ड्स में शुगर केन को ग्रोन किया, फिर उसको बेटा मार्केट में सेल किया. वहाँ से बेटा जो मशीनरी सेक्टर्स है लाइक सेकेंडरी सेक्टर, वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा बेटा. दे आर द चेंज देयर फॉर्म्स. शुगर केन से बेटा क्या हुआ, रॉ मटेरियल था, बट नाउ द शुगर और गुड़.
ठीक है, तो उसकी शक्कर या गुड़ बना दिया गया। सो वी कन्वर्ट अर्थ इनटू द ब्रिक्स, ठीक है, जैसे ईंटें बेटा ब्रिक्स, एंड यूज़ द ब्रिक्स मेक हाउसेज एंड द बिल्डिंग। बेटा जब तक ईंटें हैं, ठीक है, हमने मिट्टी से बनाया, बट जब हम उससे अपना हाउस या अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं तो बेटा उसका यूज़ हो रहा है। सो दे फॉर्म देयर चेंज। पहले कच्चा ईंट था, फिर उसको पकाया बेटा और अब वो आपके हाउस में लग गया। So they are also the change their form. Since this sector is gradually become associated with the different kinds of industries that came up, it's also called the industrial sectors. ठीक है, this also the underline line beta, इसको भी underline करें। Primary sector is also called agriculture and related sectors. ठीक है, secondary sector is also called the industrial sector. After the primary and secondary, there are the third category of the activity that falls under the tertiary sectors. ठीक है, so and the different form of about two. These are the activity that help in the development of the primary and the secondary sectors. These activity by themselves do not produce the good, but they are in aid or the support from the production process. For example, goods that are the produced in the primary sectors or the secondary sectors, we need to be transported by the trucks or the trains. देखो मशीनरीज में या फैक्ट्रीज़ में या मार्केट में बेटा, ठीक है, बड़े बड़े वहाँ पे जो उनके गोदाम होंगे वहाँ पे आपने माल तैयार कर लिया बेटा, ठीक है, आपने गुड्स को तैयार कर लिया, बट अब उसको बेटा डिफरेंट पार्ट में पब्लिक तक पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं आपको बेटा सर्विस का प्रोवाइड होगा, कम्युनिकेशन का नीड होगा, ट्रांसपोर्ट का नीड होगा बेटा। सो देयर वी हैव नीड टू द ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रक्स और ट्रेन्स में बेटा, जो हम उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो गुड्स है, प्रिपेयर जो गुड्स है बेटा, उसको सर्विस कर सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज tertiary sector is also called the service sector. That is the important line below. Now at the times it may be necessary to store these in the godowns. ठीक है, हम godowns में रखेंगे बेटा, and we also may need to talk to others over टेलीफोन और द सेंड द लेटर्स, ठीक है, लाइक कम्युनिकेशंस करके बेटा, और द बोरोज द मनी फ्रॉम द बैंक्स, बैंकिंग ऑफ हेल्प द प्रोडक्शन एंड द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर द सम एग्जांपल ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइन्स, आपको ये बेटा एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा आप। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, देयर आर द एग्जांपल ऑफ टर्शरी सेक्टर। सिंस दिस एक्टिविटी जनरेट सर्विस रादर देन गुड्स, the tertiary sectors is also called the service sectors. So that is the important, हम इसको बेटा service sector भी कहेंगे बेटा। ठीक है, now we move on some another concept of this chapter like comparing of the three sectors. Now बेटा अब तीनों sectors को compare करेंगे, because how do we count the various goods and the services and know the total production of each sectors। ठीक है, कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, किस में बेटा प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा बेटा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को, या जहाँ पे बेटा पब्लिक इंगेज ज़्यादा है, जहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा है, वो कौन सा सेक्टर्स है। सो वी हैव गिव ए एग्जाम्पल एंड देन वी हैव एनालिसिस की व्हाट सेज द कंपेयरिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो देयर इज गिवन द वन एग्जाम्पल लाइक you are right to think so. We get around the problems. Economists suggest the value of goods and the service should be used rather than the adding up the actual numbers. For example, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया बेटा, 10,000 kgs of wheat is sold, RS 8 per kg। ठीक है बेटा, 10,000 kg wheat था, उसको हमें सॉल्व करना था, मार्केट में सॉल्व किया, बट उसका जो रेट रखा बेटा 8 रुपये पर kg। सो द टोटल वैल्यू ऑफ wheat, अब 10 kg था तो 10,000 kg इंटू 8, तो टोटल अमाउंट हो गया बेटी 80,000। अब द वैल्यू ऑफ 5,000 coconuts at RS 10 per coconut will be the 15,000. Similarly, the value of goods and the service in the three sectors are the calculated and then added up। ठीक है बेटा, तो उसको बाद में हम एडिट करके बताएंगे कि कौन से सेक्टर से हमें बेनिफिट, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा गेन हो रहा है। सो रिमेंबर दिस आर वन द प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेकन, नॉट एवरी गुड्स और द सर्विस दैट इज़ द प्रोड्यूस एंड द सॉल्व नीड टू बी काउंटेड। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें काउंट नहीं होगी बेटा। टेक फॉर द इंस्टेंट द फार्मर हु सेल्स वीट
टू ए फ्लोर मिल RS 8 रुपये पर केजी। ठीक है, एक फार्मर्स ने बेटा अपने वीट को एक फ्लोर मिल पे सेल किया 8 रुपये पर केजी में। ठीक है, द मिल ग्रेन द वीट एंड द सेल द फ्लोर टू ए बिस्किट कंपनी फॉर द 10 रुपीज़ पर केजी। उसने बेटा उसको फ्लोर किया और उसको बेटा बिस्किट फैक्ट्री वाले को 10 रुपीज़ पर केजी में बैठ दिया। सो यू नो उसको 2 रुपीज़ पर केजी पे बेनिफिट हुआ। ठीक है, फार्मर्स को उसने 8 रुपीज़ में खरीदा और फिर उसने सेकेंडरी सेक्टर में बेटा उसको 10 रुपीज़ में उसने सेल आउट किया। ठीक है, तो यहाँ भी उसको बेनिफिट गेन हुआ एंड इट्स। अब बेटा देखिए, जो बिस्किट फैक्ट्री वाला था, द बिस्किट्स कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज द शुगर एंड ऑयल टू द मेक द 4 पैकेट्स ऑफ द बिस्किट्स। अब उसने उसको क्या किया बेटा, बिस्किट फैक्ट्रीज में उसने ऑयल और शुगर को ऐड किया और उसका बिस्किट्स बना लिया और उसको बेटा फिर सेल किया। तो द सेल ऑफ बिस्किट इन द मार्केट द कंज्यूमर फॉर RS 16 रुपीज़। ठीक है, RS 15 पर पैकेट। ठीक है, तो 1 केजी के उसने 4 पैकेट बनाए, पर पैकेट उसका वैल्यू बेटा उन्होंने 15 रुपीज़ रखा। सो टोटल अमाउंट ही गेन 16 रुपीज़। सो यहाँ पे देखो उसको बेनिफिट कितना हुआ बेटा, 50 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। सेकेंडरी सेक्टर में उसने 2 रुपीज़ का बेनिफिट गेन किया, बट सर्विस सेक्टर में उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट गेन हुआ। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स। ठीक है, ये बेटा एक फाइनल गुड्स हो गया जो कंज्यूमर उसको बेटा यूज़ करेगा। ठीक है, सो वाई वी आर ओनली द फाइनल गुड्स एंड द सर्विस काउंटेड। तो बेटा फाइनली हम किस चीज़ को काउंट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में, दैट इज़ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज counted. In the contrast of the final goods such as the wheat and the wheat flour is the example are intermediate goods. Intermediate goods are used for the, इसको underline करेंगे बेटा, intermediate goods are used up to the proceeding the final goods and the services. The value of final goods already including the value of all the intermediate goods. ठीक है, सारी उसमें जो भी उसकी वैल्यूज़ लगी है बेटा, प्रोडक्शन से लेकर जब उसको फार्मर्स ने अपने फील्ड्स में ग्रोन किया वहाँ से लेकर सर्विस सेक्टर में जहाँ तक कि वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँच गया, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बेटा इंक्लूड होती है। ठीक है, सो दैट इज़ द फाइनल गुड्स एंड फाइनली वी सेज the value of final goods and the service produced in the each sector during the particular year provide the total production in the sector for that year we call GDP. ठीक है, gross domestic product. Okay, so this is the first part of this chapter. ठीक है, and we have continued to in this chapter with part second.